Hello, class 4 students. You all are welcome in your English class. I am your digital mentor. With me, you all are going to study your chapters from your English book. Hope you all are excited and you all are fit, fine, and healthy. Today, we are going to start our very first class from the very first chapter from your English book, chapter number 1, The Tiger and the Persimmon. आज बच्चों हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम टाइगर के बारे में पढ़ेंगे और आज हम परसिमन के बारे में पढ़ेंगे. What is persimmon? Let's explore in this chapter. But before we begin, here are some messages given to you. Sometimes big trouble go away on their own. In some situations, we should wait patiently and let the time mold destiny in the best direction. So wow, what a beautiful message is written here कि कभी कभी क्या होता है बच्चों, कुछ मुसीबत ऐसी होती है जो अपने आप ही आती हैं और अपने आप खुद ही चली जाती हैं. कभी कभी कुछ चीजें हमें किस्मत के भरोसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें जो है वो किस्मत ने हमारे लिए लिखी होती है. चलिए चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं. Here activities given to you. You have to identify and circle the fruits that are juicy. Here some fruits are here in the picture you can see. और इसमें बच्चों जो फल रस से भरे हैं उन्हें आपको क्या करना है, उन फल पे आपको सर्कल बनाना है. Now let's start our story. There was once a small and sleepy village situated deep in the mountains. The villagers were mostly farmers who earned mere sorry mere wages. They got together in the evening and narrated to each other the tales from the past. Now, there was once a small and sleepy village situated in the mountains. So यहाँ ये कहानी एक ऐसे गांव की है. कैसा गांव है? स्लीपी गांव है. यानी कि वहां ज्यादातर लोग कैसे है? स्लीपी है, साउंड गांव है. एंड द विलेजर्स वर मोस्टली फार्मर्स हु अर्नड mere wages. और वहां के जो विलेजर्स हैं वो ज्यादातर क्या है? वो किसान हैं और उन्हें उनकी आमदनी कितनी है? थोड़ी बहुत उनकी आमदनी है. They got together in the evening and narrated to each other the tales from the past. अब वो शाम में आपस में मिलते थे और एक दूसरे को कहानियां सुनाया करते थे, कुछ प्राचीन कथाएं. The children played around, shouting, screaming, and enjoying themselves. On the mountain behind this village lived a big tiger. The villagers were very frightened of the tiger. Some of them had seen him. They described him as a terrifying beast as big as giant. So, गांव में बच्चे भी थे. बच्चे क्या करते थे? दिन भर चिल्लाते थे, चीखते थे और गांव में खूब मस्ती करते थे और गेम खेला करते थे. ऑन द माउंटेन, माउंटेन के पीछे एक गांव था जहां एक टाइगर रहता था और उस टाइगर से सभी ग्रामवासी बहुत ज्यादा घबराए हुए रहते थे. सम ऑफ देम हैड सीन हिम और किसी किसी न किसी ने उसे जरूर न जरूर बच्चों देखा था. नाउ दे डिस्क्राइब हिम, गांव के कुछ लोगों ने उस टाइगर को देखा था और उस टाइगर को वो कैसे डिस्क्राइब करते थे? उन्हें ऐसा लगता था कि वो बहुत ही टेरिफाइंग बीस्ट है, यानी वो बहुत ही भयंकर राक्षस है और बहुत ही ज्यादा विशाल है. कौन? द टाइगर. नाउ they said that he moved grandly, his bright orange color added to his majesty. However, the hunting of animals by the people from the surrounding villages and the felling of trees had hardly left any kill for the tiger in the forest. अब क्या होता है बच्चों? They said that he moved grandly. वो बहुत चौड़ा होकर चलता था और उसकी जो आंखें थी बहुत ज्यादा चमकदार थी और उसकी बॉडी किस रंग की थी? ऑरेंज कलर की थी, जो उसके शान को और भी ज्यादा बढ़ाती थी. However, the hunting of the animal by the people from the surrounding villages and felling of trees had hardly left any kill for the tiger in the forest. यानी कि जो गांव के लोग थे आसपास के, वो इतनी ज्यादा हंटिंग कर देते थे कि बहुत कम शिकार रह जाता था जिसको टाइगर जो है जिनका शिकार कर सके. One winter night, the tiger climbed down from the mountain and entered the village.
एक सर्दी की रात थी जब टाइगर जो है वो माउंटेन पहाड़ चढ़कर वो कहाँ आ गया, वो विलेज में आ गया, गांव में आ गया। ही वॉज वेरी वेरी हंग्री और वो बहुत बहुत ज्यादा भूखा था। ही वॉन्टेड फूड, उसे क्या चाहिए था, उसे भोजन चाहिए था। ही हैडंट ईटेड एनीथिंग फॉर 3 days और उसने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। He came to a house and paused outside the window. वो घर में आता है एक और एक खिड़की के सामने खड़ा हो जाता है। He heard a baby crying, wah 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 wah. अब वो क्या देखता है, वो एक छोटे से बेबी को देखता है रोते हुए। छोटे बच्चे कैसे रोते हैं, वाह 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 ऐसे करके रोते हैं, तो वो छोटा बच्चा ऐसे ही रो रहा था। The baby wailed continuously. अब जो बच्चा था वो लगातार ऐसे चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। What a brat, thought the tiger. I should eat him. The tiger was about to leap inside when he heard the baby's mother, keep quiet. The big bad bear is sitting outside the window. He will come inside and gobble you up. But the baby kept on crying. अब क्या होता है, अब जब वो बच्चा रोता रहता है, टाइगर उस बच्चे को देखता है तो बहुत ज्यादा वो चिड़चिड़ा हो जाता है। कहता है, यू ब्रैट, आज मैं तुझे खा जाऊंगा। और जैसे ही टाइगर उस बच्चे को खाने को लिए जाता है, आगे और बढ़ता है, तभी उसे उस बच्चे की माँ की आवाज सुनाई देती है। और उसकी माँ क्या बोलती है, चुप हो जाओ, नहीं तो घर के बाहर जो बड़ा सा भालू है ना, वो तुम्हें खा जाएगा। लेकिन इस बात का भी असर बच्चे को नहीं होता, बच्चा जो है वो कंटिन्यूअसली रोता रहता है। The tiger paused and thought, what a strange baby, he is not even afraid of a big bad bear. अब टाइगर जो है वो पॉज हो जाता है, वो रुक जाता है और सोचने लगता है, अरे ये कितना विचित्र, कितना अजीब बच्चा है, इसे तो भालू से भी, बड़े भालू से भी डर नहीं लगती है। द टाइगर्स स्टमक वॉज रम्बलिंग। अब टाइगर का पेट जो है वो भूख के मारा तड़प रहा था। He had to eat at once और उसे बहुत कस के भूख लगी थी। He decided to enter the house immediately और उसने तय किया कि वो अभी तुरंत ही घर में घुस रहा है। Just then he heard the baby's mother say, "Oh, again, look, look," she said. "Here comes the big tiger from the mountains." अब उसकी मम्मी क्या कहती है कि अच्छा तुम फिर से रो रहे हो, तो सुनो, वो देखो पहाड़ से, पहाड़ पर चढ़कर हमारे गांव में एक बड़ा सा टाइगर आ गया है। He is right that at the window और देखो वो हमारी खिड़की के सामने ही है। If you do not stop crying, अगर तुमने रोना बंद नहीं किया, he will surely eat you और वह पक्का तुम्हें खा जाएगा अगर तुम ऐसे ही रोते रहे। बट मम्मी ने अननोइंगली ये बातें कही, उन्हें नहीं पता था कि सच में टाइगर है। बट द बेबी कंटिन्यू टू क्राई, लेकिन बच्चा जो है वो तब भी रोने लगा, तब भी उसने रोना अपना बंद नहीं किया। He was continuing crying. Now he seemed exhausted, but he cried on and on. और बच्चा जो था वो एग्जॉस्टेड लग रहा था, थका हुआ लग रहा था, लेकिन तब भी वो लगातार रो रहा था। The tiger was amazed. He had never seen a living being who did not fear him. अब टाइगर जो था वो बहुत ज्यादा अमेज्ड हो गया, चौंक गया, और उसने आज से पहले ऐसे किसी भी जीव जंतु को नहीं देखा था, ऐसे लिविंग बीइंग को नहीं देखा था, ह्यूमन को नहीं देखा था जो उसके नाम से ना डरे, उससे ना डरे। He wondered, वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। This baby is not even afraid of me. ये बच्चा तो मुझसे भी नहीं डर रहा है। ग्रेट टाइगर ऑफ द माउंटेन, मैं तो पहाड़ का सबसे महान विशाल टाइगर हूँ। द टाइगर वॉज ट्रबल्ड बाय दिस एंड ही डिसाइडेड टू रिजॉल्व द इशू बाय ईटिंग द बेबी। अब टाइगर जो है, उसको ये बात मनी मन खाए जा रही थी, वो बहुत ज्यादा परेशान था और उसने सोचा कि अब वो जाके बेबी को पक्का ही खा लेगा। It's about you. Do your mother used to scare you in your childhood so that you could listen to her? क्या आपकी मम्मी भी ऐसी इस बेबी की मम्मी की तरह आपको कुछ ऐसी कहानी बताकर आपको डराया करती थी ताकि आप उनकी बात माने? अगर ऐसा है तो write in the given blanks. Now let's move towards our story. He prepared to pounce. अब टाइगर ने अपने आप को तैयार कर लिया कि वो अब झपट्टा मारेगा बेबी के ऊपर। एट दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण, द बेबीज मदर सेड, और बेबी की मम्मी ने क्या बोला, लुक, अ पर्सिमम। द बेबी स्टॉप क्राइंग एट वंस। उसकी मम्मी क्या बोलती है, ये देखो, ये है पर्सिमन। तभी उसी वक्त बेबी जो है वो रोना बंद कर देता है। हु इज दिस पर्सिमन? अब टाइगर सोचता है, अरे ये पर्सिमन क्या है, क्या आपको पता है ये पर्सिमन क्या है? चलिए पढ़ते स्टोरी को और जानते हैं, व्हाट इज दिस पर्सिमन।
He surely must be much more powerful and ferocious than me. अब टाइगर को लगता है परसिमन कोई जानवर है और वो उससे भी ज्यादा भयंकर है, तभी तो बच्चा चुप हो गया, उसने रोना बंद कर दिया परसिमन का नाम सुनते ही। Just then something heavy fell on his back. तभी उसके पीठ पर कुछ भारी सा गिरता है। The tiger did not know that it was thief who wanted to steal a buffalo. टाइगर को ये नहीं पता चलता है कि उसके ऊपर जो गिरा है ना, वो एक चोर है जो बफेलो को चुराना चाहता था। In the dark, the thief had mistaken the tiger to a buffalo. और रात के वक्त में जो चोर था उसे लगा टाइगर की जगह वो बफेलो को पकड़ रहा है, लेकिन गलती से वो टाइगर को पकड़ लिया था, उसने टाइगर के ऊपर ग्रैब कर लिया था, झपट्टा मार लिया था बफेलो भैंस समझकर। द थीफ रियलाइज दैट ही वाज सिटिंग ऑन अ टाइगर। अब जो थीफ था, जो चोर था, उसे एहसास हो गया कि उसने भैंस को नहीं पकड़ा है, बफेलो को नहीं पकड़ा है, उसने किसको पकड़ लिया है, उसने टाइगर को पकड़ लिया। वो टाइगर के ऊपर आकर बैठ गया है गलती से, जस्ट बिकॉज इट वॉज नाइट एंड इट वॉज डार्क, ही कुडंट सी। नाउ ही मेड अ लाउड क्राई, आ ऊ। अब जो चोर है वो चिल्लाने लगता है, कैसे, आ ऊ। द टाइगर थॉट इट वॉज अ पर्सिमन अटैकिंग हिम। और टाइगर को क्या लगता है कि जरूर ये फिरोशियस पर्सिमन है, जिसका नाम सुनकर बच्चे ने रोना बंद कर दिया था, उसने मुझे अटैक कर दिया है। He ran here and there to throw the persimmon off his back. अब टाइगर भी डर के मारे भागने लगता है और वो सोचता है जल्दी से पर्सिमन उसके पीठ से उतर जाए। The thief held on tightly to tiger's back, knowing that if he fell, the tiger would tear him to pieces. Here you can see in the picture. अब जो चोर है वो डर के मारा टाइगर के ऊपर से नहीं उतर रहा है, उसे लग रहा है कि अगर वो टाइगर के ऊपर से उतर जाएगा तो टाइगर उसे जिंदा चबा जाएगा, खा जाएगा, उसे मार डालेगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। Now the tiger ran in circle and zigzags to get rid of Persimmon. अब टाइगर क्या करता है, zigzag भागता है, गोले में भागता है कि जल्दी से Persimmon जो उसके पीठ के ऊपर बैठा है वो फटाक से छोड़ दे, उसका पीछा छोड़ दे। टाइगर भी Persimmon से डर रहा था और जो लड़का था, जो बॉय था, जो चोर था टाइगर के ऊपर था, वो भी टाइगर से डर रहा था, लेकिन दोनों को दोनों की असलियत नहीं पता थी। दे बोथ स्ट्रगल, दोनों आपस में संघर्ष करते रहे। Suddenly the thief noticed a hanging branch of a tree विद इन हिज रीच। तभी चोर को क्या दिखाई देता है, एक पेड़ की डाल लटकी रहती है, एक ब्रांच लटकी रहती है, लटक रही होती है। वो क्या करता है, वो फटाक से उस पेड़ की ब्रांच को, टहनी को पकड़ लेता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। He quickly sees it, climb up tree and hid himself among the branches. और branches के बीच में वो अपने आप को छुपा लेता है। The tiger did not wait. Tiger इंतजार नहीं करता है। The persimmon is terrible creature. Tiger को लगता है कि persimmon जो है वो एक terrible creature है। I will never come to hunt in this village again. और मैं कभी भी अब इस गांव में दोबारा शिकार करने नहीं आऊंगा। He said, ऐसा कहते ही वो वापस पहाड़ की ओर भाग जाता है। So बच्चों, आपको पता है ये persimmon था क्या? So here you can see in your word meaning what is persimmon. Persimmon एक फल है, क्या है, एक फ्रूट है। An edible fruit जो किसकी तरह लगता है, जो ऑरेंज की तरह लगता है, जो खाने पे बहुत रसीला होता है और मीठा होता है। तो थी ना कितनी मजेदार स्टोरी। आई होप you all had fun learning with me. Revise the chapter properly. Here we have quick snap of the story. Let us read together and summarize the story. The central theme of the story is a wit and humor. A tiger that all the villagers were afraid of comes to the village, and there he noticed a weeping child. His mother was trying to calm him down by scaring him with the name of the bad bear and tiger, but he won't stop. क्या होता है, जब उसकी मम्मी बोलती है कि बैड बियर आ जाएगा, टाइगर आ जाएगा, लेकिन बेबी जो है वो रोना बंद नहीं करता है। The tiger thinks that the child is not scared of him at all. Now the child finally stopped. Child कब रोना बंद करता है? Child finally stopped weeping upon listening about the name of the persimmon, जो कि एक फल रहता है, जो कि क्या है, which is a fruit. Now tiger thinks that persimmon is something which is more powerful and ferocious than him, so he decided to leave all of sudden a thief लेफ्ट। अब हमने ये कहानी पढ़ी कि कैसे जो चोर है वो उसके ऊपर भैंस समझकर कूद पड़ता है उसे चुराने के लिए, लेकिन बाद में क्या होता है, चोर अपनी जान बचाकर भागता है और टाइगर भी अपनी जान बचाकर भागता है।
Tiger think that it was a persimmon that pounced upon him, and after a lot of effort, the tiger gets rid of the thief and runs away. That's all about this class. Revise the chapter, revise the word meaning, learn all the tough spelling of the word. And I'll be meeting you all in your another English class. Till then, take care of yourself and believe in your hard work, believe in your destiny. Thank you so much. Bye bye.